Namaste everyone and welcome to yet another session where we are covering all the 114 sets that have ever appeared in CAT from CAT 17 till CAT 2024. Yet another session on Venn diagrams. This one is from CAT 2020 slot 3. Let's have a look and apply our fate framework. So familiarity, ambiguity, time consumption, extra info in questions, these are the four parameters. Let's quickly apply. A survey of 600 schools in India was conducted to gather information about their online teaching learning processes, OLTP, and the following four facilities were studied: F1, F2, F3, F4. 80 schools did not have any of the four facilities. जैसे ही आप ये स्टैंडर्ड क्लू पहला पढ़ते हो, you can immediately say that this is definitely high on familiarity. चार sets given है F1, F2, F3, F4. I am assuming that you know how to create a four sets का Venn diagram. If not, I'll try my best to explain very quickly how to create four sets का Venn diagram. What do the different intersection points mean? If you feel कि आपको four sets का Venn diagram आता है, अगले 5-7 मिनट का डिस्कशन आप स्किप करके सीधे फॉलोइंग आंसर्स पे जा सकते हैं, सेट के क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन पे जा सकते हैं. इन द नेक्स्ट 5-7 minutes I'm going to explain the fundamentals of four sets of Venn diagrams and their intersection, because believe me, there is one set which if you do via silos or creating tables, you will find it super confusing. But अगर आप Venn diagram की मदद से उस सेट को करते हो, I think CAT 22 का है, the set might be aired in few days to come. तो जब CAT 22 slot 3 या 2, आई एम नॉट वेरी श्योर, उसका एक सेट है Venn diagrams का कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स और न्यूट्रिशन का. वो सिर्फ अगर आप Venn diagram से करो तो बड़ा कन्वीनियंटली होता है, अदरवाइज इट टेक्स द हेल आउट ऑफ यू टू गेट टू द फाइनल आंसर. सो फोर सेट्स ऑफ Venn diagram, मैं थ्योरी एक्सप्लेन करूंगा इन सम टाइम. प्लीज मेक श्योर दैट यू वॉच इट. इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल, इफ यू आर कंफर्टेबल, जस्ट skip that part and move ahead. So I'm saying high on familiarity. I'll say this set is high on familiarity. Ambiguity quickly check कर लें. 40 schools had all four facilities. I mean, nothing can be simpler to interpret. मतलब this is something that you will be easily able to identify कि सर जो middle most block है उसमें 40 fill करना है. तो ambiguity का कोई scope नहीं है, ambiguity नहीं है, which is in our favor, so I'll apply a tick. Then time consumption. Let's see, 9 clues है, but 4 sets के Venn diagram में you will require a lot of things. I don't think there is a lot to worry about. ऐसा कुछ बहुत interpret करने वाला part नहीं है. तो I'll say time consumption is also in our favor. Let's look at extra info in questions. So दो डेटा बेस्ड क्वेश्चन है, दो ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन हैं. वर्स्ट टू वर्स्ट के 4 ऑप्शन हम बना लेंगे यार, ऑप्शंस का यूज करके कर सकते हैं. सो एक्स्ट्रा इन्फो इन क्वेश्चंस नहीं है. रेयरली, वेरी रेयरली डू यू गेट अ फ्रेमवर्क गेटिंग ऑल 4 टिक्स. फेट में चारों टिक आ जाएं. दिस शुड बी योर फर्स्ट सेट. इमीडिएटली पढ़ो, सॉल्व करो, गेट 12 मार्क्स इन द बैंक एंड देन मूव ऑन. नाउ आई विल टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन द construction of a four set का Venn diagram. So this is how the Venn diagram looks like and I'll very quickly explain कि बनाना कैसे. So I'm assuming कि आपने आज तक कभी four sets का Venn diagram नहीं देखा है. As I said, I'm pretty sure most of you are very well read, well studied, but there are few who don't have opportunity to study at good institutes या उन्होंने कभी आज तक इस तरह का exposure नहीं लिया है. तो उनके लिए बहुत quickly लेट्स अंडरस्टैंड कि ये 4 सेट्स का इंटरसेक्शन. आई एम प्रिटी श्योर कि 2 सेट्स का Venn diagram आप सबको पता है कि यू कैन क्रिएट लाइक दिस. 3 सेट्स का Venn diagram टिपिकली यू टेंड टू क्रिएट लाइक दिस एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु वुड बी टेम्प्टेड टू क्रिएट अ 4 सेट्स का Venn diagram लाइक दिस. 4 सेट का Venn diagram आपकी इच्छा होगी कि सर ऐसा क्यों नहीं बना लेते, ऐसा फैंसी सा डायग्राम क्यों बनाया है और वो कैसे बनाएंगे बाद में आते हैं. This diagram is not the correct way to represent 4 sets. It's not as if कि सर अच्छा नहीं दिख रहा है, confusing है. इसमें सारे parameters cover ही नहीं हो रहे. If you look at this particular Venn diagram, if you understand the regions 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. There are 15 such regions. If you count all the regions here for 4 sets के intersection 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. आपको सारे रीजन्स 15 के 15 नहीं मिल पाएंगे, विच मीन्स यहाँ पर एक रीजन मिस हो जाएगा. तो दिस इज ए इनकरेक्ट डायग्राम. तो जब ये इनकरेक्ट है तो ये सारी पॉसिबिलिटीज को कवर करता है. तो ये डायग्राम बनेगा कैसे? सो बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको एक 3x3 की 3 रोज एंड 3 कॉलम्स का ग्रिड बना लेना है. 3 रोज एंड 3 कॉलम्स का सिंपल ग्रिड बनाया. अब आपको क्या करना है, फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम को एक सेमी सर्कल से ज्वाइन कर देना है. फिर आपको सेकंड कॉलम और फोर्थ कॉलम को भी एक सेमी सर्कल से ज्वाइन कर देना है.
फिर आपको फर्स्ट रो और थर्ड रो को सेमी सर्कल से ज्वाइन कर देना है और सेकंड रो और फोर्थ रो को भी सेमी सर्कल से ज्वाइन कर देना है. दिस इज हाउ दिस डायग्राम लुक्स लाइक. सिंपल है. 3x3 का ग्रिड बनाया, फर्स्ट थर्ड सेकंड फोर्थ ऐसा रोज और कॉलम्स दोनों में कर लिया. ये बन गया. नाउ व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट? सो वी कैन से ये जो चार कैप्स दिख रही हैं सेमी सर्कुलर कैप्स, इनको हेडिंग के लिए यूज कर सकते हैं कि दीज रिप्रेजेंट ABCD एज अ 4 डिफरेंट सेट्स. ये चार अलग अलग सेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे ये समझना हुआ कि सेट ए में कौन कौन सी वैल्यूज आएंगी, कौन कौन से रीजन्स आएंगे, कौन कौन से ब्लॉक्स आएंगे, तो मैं टिक अप्लाई कर रहा हूं. एवरी सेट विल हैव 8 डिफरेंट रीजन्स और ब्लॉक्स. तो ये जो 8 अलग अलग टिक लगे हुए दिख रहे हैं, ये जो रीजन्स हैं, ये जो ब्लॉक्स हैं, ये किसे बिलोंग कर रहे हैं? सेट ए को. और अगर अब मुझे सेट बी के करस्पॉन्डिंग ब्लॉक्स को रिप्रेजेंट करना होगा तो आई विल से कि ये ए वाले टिक्स हटा देते हैं, आई विल से यहां पे टिक लगा देते हैं. सो ये जो 8 रीजन्स आ गए, ये कंबाइन होके पूरा का पूरा रीजन कौन सा दे रहे हैं? बी रीजन दे रहे हैं. आई होप ये पार्ट क्लियर है. इफ दिस पार्ट इज क्लियर, सिमिलरली 8 रीजन सी के आएंगे. सी के रीजन के लिए क्या करें? सो विल से ये पहले 2 रीजन हटा देते हैं. विल इरेज दीज 2 रीजन्स एंड आई विल रीड्रॉ दिस पार्ट. और नीचे के 2 रीजन्स भी हटा देते हैं. सो सी वाले के लिए आई होप दिस शुड बी प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि ये 8 रीजन्स सी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और अब बनाने की जरूरत नहीं है. नीचे के 8 रीजन्स डी को रिप्रेजेंट कर लेंगे. तो बनाना कैसे है, रीजन्स को इंटरप्रेट कैसे करना है, क्लियर है. अब इस 4 सेट्स के वेन डायग्राम बड़े वाले फिगर में कुछ इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं दैट कैन हेल्प यू जनरेट स्पीड, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल स्ट्रगल विद दिस कि सर समझ में तो आ जाता है 4 सेट ऑफ वेन डायग्राम, बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. इट डजंट टेक अ लॉट ऑफ टाइम इफ यू अंडरस्टैंड इट द वे आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड इट. आप अगले 2 मिनट में बहुत इजीली इंटरप्रिटेशन समझ जाओगी कि हम बहुत जल्दी वैल्यूज कैसे पुट करें 4 सेट्स ऑफ वेन डायग्राम. सो सेट ए में जब हमने बोला 8 ब्लॉक्स हैं, कैन आई से दिस रीजन रिप्रेजेंट्स ओनली ए वाला रीजन. ये वाला जो ब्लॉक है जिसपे टिक लगाया है, ये देखो बी वाले सेट के बाहर है, ये सी वाले सेट डी वाले सेट के भी बाहर है. सो विल से दिस रिप्रेजेंट्स ओनली ए वाला रीजन. और can I say 1 वाला region? 1 would mean it represents only one set and that set corresponding is A. मैं similarly only B वाले region में 1 quotation में लिख दे रहा हूं. What does this 1 represent? Only B वाला region. It represents intersection of one set. There is no overlapping with any other set. Similarly, I can write 1 here, only C. I can write 1 here, only D. तो exactly 1 वाले regions जहां intersection है ही नहीं, सिर्फ एक पर्टिकुलर सेट्स का रिप्रेजेंटेशन है, वो समझ में आ गए. नाउ इफ आई से ऑल 4 रीजन्स को ऑब्जर्व करो, ऑल 4 रीजन्स. तो ये जो हमने ग्रिड बनाया था ना 3x3 का, इसका सेंटर मोस्ट जो स्क्वायर है वो आपका 3x3 का इंटरसेक्शन देगा, 4x4 का इंटरसेक्शन देगा. सो दिस आई रिप्रेजेंट एज 4. जो सेंटर मोस्ट ग्रिड है, जो सबसे सेंटर में ग्रिड है, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? इंटरसेक्शन ऑफ. चेक कर लो इस वाले बॉक्स में. Can I say this represents a part of set A? This represents a part of set B, part of set C and part of set D as well. तो ये represent कर रहा है all 4 facilities. जैसे भी क्लू को पढ़ रहे थे जब स्टार्टिंग में, तो we had that clue 40 had all 4 facilities. So all 4 center most, middle most grid में सीधे आप बहुत जल्दी वैल्यू पुट कर सकते हो 40 का. अब जो 3 वाले इंटरसेक्शन है, they are very interesting. Please remember them. ये बहुत काम आएंगे. 3 वाले रीजन्स या 3 इंटरसेक्शन वाले रीजन्स कौन कौन से हैं? सो जो सेंटर मोस्ट आपने 4 देख लिया, उसका टॉप, उसका बॉटम, टॉप बॉटम राइट और लेफ्ट, ये जो 4 स्क्वायर्स आपको मिलेंगे, दे विल रिप्रेजेंट द इंटरसेक्शन ऑफ एग्जैक्टली 3. तो मैं यहां 3 करके कोटेशन में लिख देता हूं. कौन कौन से? टॉप बॉटम राइट और लेफ्ट. ये रीजन्स जो हैं, ये 3 के इंटरसेक्शन है. अगर थोड़े और डिटेल में लिखना हुआ तो थिंक ऑफ इट दिस वे, इसमें कौन कौन से सेट्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं. तो विल से ये वाला बॉक्स ए का तो हिस्सा है, बी का भी हिस्सा है और ये सी का भी हिस्सा है, बट ये डी वाले सेट के बाहर है. तो कैन आई से दिस रिप्रेजेंट्स द कॉम्बो और इंटरसेक्शन ऑफ एबीसी. जो बॉटम वाला आएगा उसमें देखो डी का हिस्सा है, बी का हिस्सा है, ए का भी हिस्सा है, पर सी का हिस्सा नहीं है. तो विल से दिस रिप्रेजेंट्स द इंटरसेक्शन ऑफ एबीडी. राइट मोस्ट वाला जो पार्ट है, राइट मोस्ट वाला 3 का इंटरसेक्शन है, वो चेक करो ए के बाहर है. सो इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ ए. ये जो ए वाला सेट है इसके बाहर है, तो दिस रिप्रेजेंट्स एन इंटरसेक्शन ऑफ द रिमेनिंग 3 सेट्स बीसीडी. और ये वाला जो लेफ्ट मोस्ट रीजन है किसके बाहर है? वो बी के बाहर है.
तो दिस रिप्रेजेंट्स इंटरसेक्शन ऑफ ACD। तो ये तो ऑल फोर ABCD का रीजन हो गया, और जो तीन वाले रीजन है वो या तो ABC बन सकता है, ACD बन सकता है, ABD बन सकता है, BCD बन सकता है। अब आपको 1 वाली रीजन पता है, आपको 4 वाला रीजन पता है, आपको 3 वाला रीजन पता है। अब जो बच गए 6 ब्लॉक्स, व्हाटएवर 6 ब्लॉक्स आर रिमेनिंग, दे रिप्रेजेंट द इंटरसेक्शन ऑफ एग्जैक्टली 2 सेट्स। एग्जैक्टली 2 सेट्स वाले कौन कौन से हैं, अब क्विकली फिल कर लें। सो दिस रिप्रेजेंट्स A एंड B का इंटरसेक्शन ओनली, दिस रिप्रेजेंट्स A एंड C का इंटरसेक्शन, तो लिख लेते हैं AB, दिस रिप्रेजेंट्स AC, ये वाला represents intersection of two sets, which are the two sets BC, this represents intersection of two sets, which one, CD, this represents intersection of two sets, which are the two sets BD, ये वाला two sets का intersection कौन से दो sets A and D, चेक कर लो सारे कवर हो गए 6, so 1 2 3 4 5 6, overall 15 blocks we have been able to identify. I hope ये बात क्लियर है। अब अगर कोई बोले both A and B, so both A and B में चारों ब्लॉक्स आएंगे, all these 4 blocks, both A and B, ABC में 3 ब्लॉक्स आएंगे, एक तो ABC वाला 3 रीजन्स का इंटरसेक्शन, और ऑल 4 में भी ABC आ रहा है। सो अगर कोई बोल दे that this particular number belongs to both to all A, B and C, अब A, B and C only बोले तो ये वाला रीजन आएगा, बट अगर ABC को बिलोंग करने वाले कौन से ब्लॉक से पूछा तो ABC को बिलोंग करने वाला ये ब्लॉक है, और ऑल 4 वाला ब्लॉक भी है। टिपिकल बेसिक थ्योरी ऑफ वेन डायग्राम्स दैट वी स्टडी इन आवर रेगुलर क्लासरूम। सो आई होप दिस बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ 4 सेट्स ऑफ वेन डायग्राम इज क्लियर। नाउ वी कैन मूव ऑन टू द सेट एंड द क्वेश्चंस देयर आफ्टर। तो एक बार क्विकली देख लें, दिस इज द डायग्राम दैट आई वांट यू टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और ये याद रख लें कि सेंटर मोस्ट ग्रिड इज 4, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट विल बी 3 के इंटरसेक्शंस, बचे हुए 1 के इंटरसेक्शंस ढूंढना इजी है। Remaining 6 gaps will be the intersection of 2 regions at a time. Now let's move ahead and look at this set. तो हमारे पास टोटल कितने लोगों का सर्वे है, 600. So I'm directly putting the value of total as 600. We have the following 4 facilities, F1 से F4. So I'll write F1, F2, F3 and F4. ये 4 facilities का इंटरसेक्शन कुछ ना कुछ डेटा दे रहा है। 80 schools did not have any of the 4 facilities, मतलब none की वैल्यू यहाँ पर हम लिख सकते हैं 80 के बराबर आ जाएगी, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लू। 40 had all the 4 facilities, सबसे सेंटर मोस्ट ग्रिड, टाइम नहीं लगेगा टेबल को फिल करने में, ग्राफ को फिल करने में। 40 ऑल 4 फैसिलिटीज आ गया। नंबर ऑफ स्कूल्स विद ओनली F1, ओनली F2, ओनली F3, ओनली F4, मतलब 1 वाले रीजन कौन कौन से हैं, 25, 30। सो लेट अस पुट इट हियर 25, देन यू हैव 30 ओनली F2 वाला। जस्ट बी केयरफुल कि F2, F3, F4 इसी ऑर्डर में दिया है, तो हम उसी ऑर्डर में करेक्टली लिख दें। दिस इज 26, द लास्ट वन इज 20, ठीक है। द नंबर ऑफ स्कूल्स विद एग्जैक्टली 3 फैसिलिटीज वेर द सेम irrespective of which 3 were concerned या were considered। कौन से 3 फैसिलिटीज देख रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 3 वाले इंटरसेक्शन की वैल्यू सारी सेम है, मतलब टॉप, बॉटम, राइट और लेफ्ट, ये सारी वैल्यूज एक्स हो जाएंगी 40 के। आगे बढ़ते हैं। सो वी आर डन विद फोर्थ क्लू। 313 स्कूल्स हैड F2, तो F2 फैसिलिटीज वाले 313 स्कूल्स हैं। डन विद फिफ्थ क्लू। 26 schools had only F2 and F3, आगे क्लैरिफाई भी करा है, neither F1 nor F4, which essentially means only F2 and F3, सिर्फ F2 F3, 2 regions का intersection F2 और F3, ये वाला। कितने schools बोले हैं, 26, so this data is again 26, 26 schools had F2 and F3 only इस ब्लॉक में, और कुछ intersection का पार्ट नहीं आ रहा, देखो ये F4 के बाहर है और F1 के भी बाहर है, ये 26 वाला ब्लॉक। so this is done, clue number 6। Among the schools having F4, 24 had only F3, तो F3 and F4 only, 2 का रीजन F3 F4 का, तो F3 F4 के लिए डेटा क्या दिया है, 24, so this block you will get the value as 24, and 45 had only F2, तो F4 and F2 only, F4 and F2 only, F2 और F4 का इंटरसेक्शन ये वाला दिखेगा, इसमें कितनी वैल्यू है, 45, so this block as a number 45। बस लिस्ट पुट करनी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड डेटा है, नथिंग टू डिफिकल्ट। समझाने में टाइम लग जाता है, अब अपनी रफ शीट पे जब करोगे तो आई एम प्रीटी श्योर दैट यू वुड सॉल्व इट वेरी वेरी क्विकली। 162 स्कूल्स हैड बोथ F1 एंड F2, तो जो F1 F2 4 ब्लॉक्स दिख रहे हैं, ये दोनों इंटरसेक्शन बताएंगे
दोनों का इंटरसेक्शन किस किस का, F1 का और F2 का, ये दोनों का इंटरसेक्शन चारों ब्लॉक्स बताएंगे. दिस डेटा is given as 162. So when I put an arrow starting from here, for me it is an understanding that intersection of F1, F1 and F2 sorry is equal to 162. तो हमने 8th क्लू भी यूज कर लिया, 162 had F1 and F2. और लास्ट क्लू बचा है द नंबर ऑफ स्कूल्स हैविंग F1 was same as the number of schools having F4. तो इसको बाद में यूज कर लेते हैं. F1 का जो टोटल है वो F4 के टोटल के बराबर है. सो वी हैव यूज्ड अप 9th क्लू. नाउ वी डोंट नीड टू रेफर टू आवर स्क्रीन. बार बार स्क्रीन की तरफ देखने की जरूरत नहीं है. हमने हमारी रफ शीट में सारी मैपिंग कर ली है. नाउ इट्स टाइम फॉर अस टू क्विकली सॉल्व. तो अब सॉल्व करने के लिए सबसे क्लियर डेटा तो ये एक्स वाला दिख रहा है, जिसमें पूरा टोटल ग्रैंड टोटल 313 है. बट इस ब्लॉक की वैल्यू नहीं पता. पर क्या हमें इन चारों ब्लॉक्स की वैल्यू पता है? यस, 162. अगर मैं 313 में से 162 माइनस कर दूं तो कहना है इन रिमेनिंग 4 ब्लॉक्स का टोटल आ जाएगा. और रिमेनिंग 4 ब्लॉक्स में सिर्फ एक ही वेरिएबल एक्स मिसिंग है. सो आई एम गोइंग टू जस्ट ऐड दीज वैल्यूज अप. दैट शुड बी इक्वल टू 313 माइनस 162. पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. 313 माइनस 162 कितना होगा? सो विल से 38 से 200 बन गया. 138 प्लस 13 151. सो आई एम सेइंग 151 मस्ट बी इक्वल टू, और ये 151 आया कहां से है? 151 आया है 313 माइनस 162. This should be equal to the sum total of these 4 blocks. Now add them up. 45 and 6 51 or 20 71 or 30 101 plus x. So I'll say 101 plus x. Solving we get x as 50, which is a fantastic data because there are 4 blocks with values of x. So let's put them 50 each in all the 3 blocks. 50 50 50 50 चारों जगह 50 हो गया. अब अगेन टोटल 313 करना है या इन 4 ब्लॉक्स का टोटल 162 करना है. तो बड़ी इजीली F1 एंड F2 ओनली के इंटरसेक्शन की वैल्यू आ जाएगी. फटाफट ऐड करें. 50 एंड 50 140 140 140 में क्या ऐड करें? 22. सो दिस ब्लॉक बिकम्स 22. व्हाट एल्स डू वी नो? क्या कुछ और वैल्यू पता है हमें? एनी अदर वैल्यू दैट वी नो? कुछ ऐसा डेटा जो अभी तक हमने यूज नहीं करा. तो हमने यूज क्या नहीं करा? F1 इज इक्वल टू F4 यूज नहीं करा. तो वेरिएबल्स एलोकेट कर देते हैं. हमारे 2 ब्लॉक्स ही मिसिंग है. लेट सपोज यहाँ ए दे दिया, यहाँ बी दे दिया. अब आप ये 8 वैल्यूज इक्वल कर सकते हो इन 8 वैल्यूज के. एक तरीका वो है जो आप पूरा मैथमेटिकली लिख के कर सकते हो. द अदर थिंग दैट आई कैन डू इज आई विल जस्ट ऑब्जर्व, एंड दिस इज फॉर पीपल हु वांट टू जनरेट स्पीड, कि सर आप ये भी और जल्दी कैसे कर सकते हैं. तो आप देखो F1 F4 के बराबर है. इसके लिए मैं ये 4 ब्लॉक्स जो है इनको ऑब्जर्व कर रहा हूं और मैं बोल रहा हूं ये चारों ब्लॉक्स F1 का भी हिस्सा है, F4 का भी हिस्सा है. तो ये दोनों तो सेम होने ही है. अब अगर ये दोनों सेम होने ही है तो बचे हुए जो F1 के 4 ब्लॉक्स हैं उनका टोटल रिमेनिंग 4 के बराबर होना चाहिए. दिस विल हेल्प यू डू द कैलकुलेशंस फास्टर. तो आपको 25 और 22 47 और 50 97 प्लस ए. तो आई विल राइट इट हियर. 97 प्लस ए का टोटल should be equal to the total of these 4 blocks which are F4 के blocks which are not a part of F1. जो F1 F4 दोनों में कॉमन 4 ब्लॉक्स है वो तो इक्वल होंगे ही. वो F1 का भी हिस्सा है, वो F4 का भी हिस्सा है. तो उसे तो लिखने की जरूरत नहीं है. एसेंशियली अगर आप पूरा पूरा लिखोगे तो ये 4 ब्लॉक्स कैंसल आउट हो जाएंगे. एलएचएस में भी आएंगे, आरएचएस में भी आएंगे. दैट इज द मीनिंग. बट ठीक है, अब यहाँ टोटल करते हैं. यहाँ तो चारों ब्लॉक्स पता है. सो विल से 45 और 24 पहले कर लेते हैं. तो दैट इज 69 और 50 और 20 अलग कर लेते हैं. 70 69 और 29 139. सो 97 प्लस ए इज इक्वल टू कितना टोटल हो रहा है? एक बार क्विकली चेक कर लें. 50 और 45 95 और 20 95 एंड 20 विल बी 115 115 एंड 4 119 और 20 139. करेक्ट है. अब इसका डिफरेंस ले लें तो 139 माइनस 97 कितना हो रहा है? 42. करेक्ट है क्या? 3 और 39 42. सो आपका ये जो डेटा है ये कितना आ गया? 42. ए की वैल्यू आ गई 42. अब बचा है आपका सिर्फ डी वाला पार्ट निकालना. वो कैसे निकालें? ग्रैंड टोटल 600 है जिसमें से नन 80 है. तो ये जो रिमेनिंग सारी 15 वैल्यूज हैं इनका ग्रैंड टोटल शुड बी इक्वल टू 520. तो ग्रैंड टोटल इन सारी सेट ऑफ वैल्यूज का, चारों सेट ऑफ वैल्यूज का मिलाकर 520 होना चाहिए. तो क्विकली ऐड कैसे करें? सो विल से 313 तो 8 ब्लॉक्स का टोटल गिवन ही है. सो दिस टोटल इज ऑलरेडी गिवन टू अस. इतना पार्ट तो 313 है ही. 313 में बचे हुए वैल्यूज और ऐड कर लेते हैं. सो 313 प्लस 25 प्लस 42 प्लस 50. तो 313 वैसे ही रखते हैं, बाद में ऐड कर लेंगे. 50 और 42 कितना हुआ? 92 92 और 5
97, 97 एंड 20 117, तो यहाँ का टोटल 117 आ गया LHS वाले पार्ट का। कौन कौन सी ये तीन वैल्यूज का। अब ये जो तीन वैल्यूज है इजी है, 26 और 24, 50 और 20 70, तो ये टोटल आ गया आपका 187। 187 में 313 ऐड कर दो, सो विल गेट 0 कैरी का 1, 10 का 0 कैरी का 1, 3 और 1 500, और हमें टोटल करना है 520, मतलब जो मिसिंग वैल्यू है उसको क्या होना पड़ेगा 20। सो दिस कंप्लीट्स ऑल द वैल्यूज, यू विल बी इजीली एबल टू आंसर क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस पे चलते हैं क्विकली and let's get over with this particular set of 4 questions. What was the total number of schools having exactly 3 of the 4 facilities? तो exactly 3 में चारों वैल्यूज सेम थी, 50 each, 54 का कितना होता है 200। करेक्ट आंसर इज चॉइस सी। अच्छा बाय द वे ये आंसर हो ही नहीं सकता था, तो अगर आपको बहुत रैंडमली कैलकुलेटेड तुक्का भी मारना होता है जल्दबाजी में, आखिरी का टाइम बचा है, क्योंकि हमें इतना दे दिया था, अगर आपने ये पढ़ लिया है कि चारों वैल्यूज सेम है तो 4 का मल्टीपल होना चाहिए आंसर। 4 के मल्टीपल पहले 3 ऑप्शन है, चौथा 4 का मल्टीपल नहीं है, तो दैट वुड नॉट हैव इट। अगेन आई एम सेइंग, यू माइट से कि सर अगर वो पढ़ लेते तो सेट पूरा सॉल्व ही कर लेते, ऐसा बहुत रेयरली होगा। इन केस कभी ऐसा हो जाए, जस्ट जनरल स्किल दैट यू हैव टू डेवलप, दैट यू नो व्हाई कांट डी नॉट बी एन आंसर। ये अगर आपने स्किल डेवलप कर ली, बिलीव मी यू विल डू रियली वेल इन द QA सेक्शन एज वेल, in general in life as well, because you'll be starting to think very critically. What was the number of schools having facilities F2 and F4? अब F2 and F4 बोला है, तो understand that there will be 4 blocks common. F2 चाहिए, so this is F2, F2 भी चाहिए और F4 भी चाहिए। Can I say ये 4 blocks आएंगे, तो 50 और 50 कितना हुआ 100, 100 और 85 कितना हुआ 185। करेक्ट आंसर चॉइस है। What was the number of schools having only, अब only बोल दिया तो एक ही रीजन आएगा एग्जैक्टली 2 वाला, F1 एंड F3 का कॉम्बो, F1 F3 इन दोनों का कॉम्बो 2 वाला रीजन, सो दिस इज 42। नंबर ऑफ स्कूल्स हैविंग ओनली फैसिलिटीज F1 एंड F4, F1 का हिस्सा चाहिए, F4 का हिस्सा चाहिए, सो करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी 20। So this completes our discussion for 4 sets of Venn diagram. I am sure that if you have watched the entire session, you would have learned a lot of interesting things to do questions quickly. Please share your feedback with regards to how did you find this set, and more importantly, there are going to be more sets which have appeared in CAT where we'll use the exact same framework or of the 4 sets that we have learned today. So keep watching. I'm sure that you're going to do really well in your DLR section. That's it from my side. I'll take a leave. Ciao.